Hello dear students. Today I am going to explain you about the maritime boundaries of India. So India's maritime borders are the boundaries that separate its territorial waters from the high seas. Now high seas means there are three types of oceans which are surrounded with Indian continent, that is Indian Ocean, then Arabian Sea, and then one of its Bay of Bengal. Now many people usually believe that like we have boundaries like territorial boundaries with Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, then India, Bhutan, then India, Myanmar, then India, Bangladesh, then India, Sri Lanka. Coastal maritime borders are of different calculations. They are divided into separate zones. Likewise, length of coastal line is 7,517 kilometers, that is 4,670 miles. So what are the maritime zones which India is having under its jurisdiction? Territorial waters, that is 12 nautical miles, that is 22 kilometers from the coastline, like coastlines like of Goa, the coastlines of Vizag, then Rameshwaram. These are the coastlines, coast borders. So when the coastline, we calculate the 12 nautical miles is the 22 kilometers from the coastline, is the first territorial boundary where fishermen can go and do their fishing. There's no problem in going till 22 kilometers. You will be really safe because you will be under the Indian waters. Now there is a contiguous zone, that is 24 nautical miles, that is 44 kilometers from the coastline. This is a zone in which majority of the Indian Navy and Coast Guards are always on patrolling. So many ships and many warships, many frigates are already in this particular zone. Now comes exclusive economic zone, that is 200 nautical miles, that is 370 kilometers from the coastline, where you can get the natural oils. These are the reserves which comes under Indian territories. So Indian territorial water consists of many natural and valuable things like oil, crude oil, then some kind of different kinds of marine animals. So we protect these particular areas. Then comes continental shelf, that is extends beyond the east from 350 nautical miles to 648 kilometers from the coastline. That means India is having 648 kilometers of coastline boundary, from the coastline boundary. So India is having a huge area in which economical zones is, then contiguous zone, then territorial waters, all these actually included. After that Indian water ends, that means Indian territories end, and you are either into an international water or either you will be into the waters of another country. That means another country's maritime borders. Now the bordering countries which are in maritime section is Pakistan from west, Bangladesh from east, Myanmar from southeast, Sri Lanka from south, Maldives from southwest. The strategic locations for India is Strait of Malacca connects the Indian Ocean and the Pacific Ocean. That means the route from where China usually do its business. That means India can block that particular area anytime and the China will get affected, because China uses this maritime zone for its international transportation of its ships. Second comes, that is Gulf of Aden, that connects the Arabian Sea and the Red Sea. This is the portion from where India usually exports to European countries, like not exactly European countries, like Middle East countries like Iran, Iraq, Syria, Libya. These are the portions. So we have a dispute with Pakistan related to this. Then comes Indian Ocean, a vital shipping route and the source for the maritime source, because India, whenever supplies the food and grains supplies to African countries, this is the only portion Indian Ocean which connects to Pacific, which is very important, and it is the only maritime zone in which India uses the vital shipping route. That means a huge shipping route of 648 kilometers. Now comes the maritime disputes. As I have already discussed, Pakistan disputes over the creek boundary, Bangladesh disputes over the east and continental shelf. Sri Lanka disputes with the fishing rights and maritime boundaries. Look, Sri Lanka usually have a dispute with us, but right now the disputes have been resolved and both the countries have decided that they will decide their fishing zones, and no problem if your fisherman accidentally enters in our border, or if our fisherman accidentally enters your border, it will be safely returned. There will be no issues regarding that, until and unless that's a kind of act of interference or spying or smuggling.
if it is so, then it will be handled by the laws of that particular country. Now we have maritime security. Indian Navy responsible for protecting Indian maritime interests till 648 kilometers, the highest, which I have already informed you. Coast Guards responsible for the coastal security and law enforcement. I have already told you that in my previous section CAPF, I have informed you about the police, which like BSF and these forces which comes under police forces. Now let me make you understand that Navy is also having their police force. So the maritime borders are guarded by police force also, and Coast Guard come under this category. So it's another branch which comes under Home Ministry. Now comes the maritime policing, that is cooperation with the neighboring countries to prevent piracy, smuggling and terrorism. I have already discussed with you that our Coast Guards always get indulged with the Coast Guards of Sri Lanka, exchanging the information, exchanging the intelligence, what is happening, someone is entering from our side to yours or someone is entering from your side to ours. It is same been discussed with Bangladesh, same discussed with Sri Lanka, same discussed with Myanmar, same discussed with other countries, but we don't discuss it with Pakistan. So the Mumbai attacks were actually performed by Pakistan through the western route, that is from Arabian Sea, entering to Mumbai. चलिए अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आप लोगों को. हिंदी में देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमारे देश में अलग अलग सीमाएं होती है. जैसे कि मैंने आपको उस दिन ज़मीन की सीमाएं बताई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, ITBP, ये किस तरीके से गार्ड करते हो. वैसे समुद्र में भी हमारी सीमाएं हैं. हर देश की अपनी एक सीमा होती है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. उसको 4 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. अलग अलग जोन्स अलग अलग चीज़ों के लिए होती है और अलग अलग जोन में अलग अलग लोग उसको गार्ड करते हैं. पहले हम बात करते हैं लेंथ. हमारी जो कोस्ट लाइन है, हमारी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 7,517 किलोमीटर यानी 4,670 मील लंबी है. अभी लंबी मतलब मैंने इसको पूरा का पूरा कवर किया है. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और साथ ही साथ मैंने इंडियन ओशन, ये सारा मैंने कवर कर लिया. मैंने मतलब आपको ये अलग अलग एक साइड का नहीं बताया, मैंने पूरी मैरीटाइम कोस्ट आपको बताई है. अब मैरीटाइम जोन्स क्या होती है? जोन्स 4 प्रकार की डिवाइडेड होती है. पहला होता है टेरिटोरियल वाटर्स, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स, 22 किलोमीटर्स तक कोस्ट लाइन होती है. यहाँ पर आप 22 किलोमीटर तक कोई भी मछुआरा अपनी बोट लेके मछली को पकड़ने जा सकता है, जिसमें कि उसे कोई मनाही नहीं है. उस पर नज़र रखी जाती है कोस्ट गार्ड्स के द्वारा. वो लॉस के हिसाब से रहता है, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा आगे इंडियन नेवी होती है, जो कि किसी भी कॉमन पर्सन को वहाँ पे एंटर नहीं होने देती है, क्योंकि वहाँ पे उसके गैजेट्स रहते हैं, वहाँ पे उसकी लैंड माइन्स होती है. ये सारी चीज़ें पहले से लगाई जाती है पानी के अंदर. तो वो नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए. सेकेंड बात करते हैं हम कंटीजियस जोन, जो कि 24 नॉटिकल माइल्स 44 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन. इसी की बात कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे इंडियन नेवी मेजॉरिटी होती है. तो जो पहली टेरिटोरियल वाटर्स की जो पहली जोन है, यहाँ पर हमारे कोस्ट गार्ड्स होते हैं जो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईज होता है. ये 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर होता है कोस्ट लाइन से. यानी कोस्ट लाइन मतलब हमारी एग्जैक्ट लैंड एरिया इंडिया का. तो यहाँ पर फिशरमैन नहीं जा सकते. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है. ये खास तौर से जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत होता है. यहाँ से ऑयल रिग्स होती है, यहाँ से ऑयल निकाला जाता है. ऑयल निकाल के ये हमारे इकोनॉमिक जोन है. यहाँ पे कई प्रकार के आपको रत्न मिलेंगे, कई प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, कई प्रकार के मेडिसिनल वैल्यूएबल चीज़ें मिलती है, जो कि आपकी संपत्ति है, आपके देश की संपत्ति, क्योंकि वो आपकी बाउंड्री के अंदर आती है. ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज के तहत हर देश को उसकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करके पहले से डिमार्केशन कर दिया गया. फिर आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ईज ऑफ 350 नॉटिकल माइल्स एंड 648 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है, चाइना यहाँ पे हमेशा इंटरफेयर करता था, क्योंकि चाइना चाहता था कि राम सेतु, जिसे कि इंग्लिश में एडम्स ब्रिज बोलते हैं, वो तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो छोटा सा एरिया है, इंडिया कभी भी ब्लॉक कर सकता है. अगर मुझे एक बड़ा एरिया मिल जाए आने के लिए तो मैं इकोनॉमिक जोन कर सकता हूँ. अब ये पिछली गवर्नमेंट्स के कुछ फेलियर्स थे, जिसके तहत राम सेतु तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल करार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस राम सेतु को बचाया था. तो राम सेतु हमारे और श्रीलंका के बीच में एक ऐसे द्वीपों का एक समूह है जिसे हम राम सेतु कहते हैं, जो कि नेचुरली बना हुआ है. वो कोरल रॉक से बना हुआ है. वो रॉक्स कहीं और से लाए गए हैं. वो रॉक्स उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करते जब उसकी कार्बन डेटिंग यानी एजिंग की गई थी. सॉरी. अब देखिए स्ट्रैटेजिक लोकेशंस क्या होती है. जैसे मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि स्टेट ऑफ मलक्का ये चाइना का एंट्री डोर है. अगर उसको इंडियन ओशन में आना है, धंधा करने के लिए अपनी शिप्स को लेकर आना है, तो स्टेट ऑफ मलक्का है.
कनेक्ट्स द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। देखो इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा ओशन है और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, तो ये दो बड़े ओशंस को कनेक्ट करता है, यानी मेजॉरिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स इस ओशन से आप जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। फिर होता है गल्फ ऑफ एडन, कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड द रेड सी। यहाँ पे पाकिस्तान बहुत इंटरफेयर करता है, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ईरान, इराक, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं यहाँ पे मेरा बिजनेस होना चाहिए। देखो पाकिस्तान की ना उतनी हैसियत नहीं है बिज़नेस करने की, अगर बोला जाए ना तो अभी उसके खुद के दाने के लिए वो मोहताज है। वो बिज़नेस करने की तो दूर की बात है, पहले खुद की अर्थव्यवस्था संभाल ले तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात सोचे। बोलते ना खुद का घर संभालना नहीं चाह रहा और चले दुनिया को संभालने के लिए। तो ये गल्फ ऑफ एडन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैरीटाइम इशू काफ़ी समय से चल रहा है। ये 1947 के समय से चल रहा है। यूएनए में जब रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि ये आपके डिमार्केटेड एरियाज़ है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना। तो इंडिया ने कभी क्रॉस नहीं किया, मगर पाकिस्तान यूजुअली बोलता है कि थोड़ा सा और आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान जो है ना वो एक जैसे चालू भाषा में बोलते हैं ना चिंदी चोरपना करता है, थोड़ा करके आगे बढ़ता है। वो क्या चाइना की पॉलिसी पे चलता है। चाइना के साथ 2-2 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर करके सामने वाले की बाउंड्री को धीरे धीरे अपने अंदर एक्वायर करना शुरू करता है। तो वैसे ही ये पाकिस्तान की भी आदत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा है जिसके हाथ में कभी चाइना झुंझुना थमा देता है, कभी अमेरिका झुंझुना थमा देता है, और वो शैतान बच्चे जैसा हमारे कान के पास झुंझुना बजाते रहता है। कभी कश्मीर में झुंझुना बजाता है, कभी अरेबियन सी में झुंझुना बजाता है, तो फिर इंडिया उसका नगाड़ा बजा देता है। तो पूरा नगाड़ा बजने के बाद वो पूरा फट जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। तो ये पाकिस्तान का हाल है। अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडियन ओशन ये एक वाइटल शिप रूट है जो कि मैरीटाइम रिसोर्स में सबसे बड़ा रूट माना जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिससे आप अफ्रीका, आप अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो आप अमेरिका भी रीच कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा घूम के स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए, चाइना को बाईपास करते हुए आप दूसरे मैरीटाइम जोन से आप रशिया भी पहुँच सकते हैं। अब देखिए, ये रशिया से अगर कनेक्ट होगा तो वो ब्लैक सी से कनेक्ट होगा, और अगर यूरोप से कनेक्ट करना है तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो रेड सी से कनेक्ट करता है, जो कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है मैरीटाइम में। अब जैसे हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इंडियन नेवी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, और इंडियन नेवी की खुद की एक पुलिस फोर्स है जिसका नाम है कोस्ट गार्ड्स। कोस्ट गार्ड्स का काम है ये लॉ एंड इन्फोर्समेंट करता है, अरेस्ट करता है, किसी ने इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है उसके ऊपर वो तफ्तीश करेगा, उसे वो अगर लगता है कि वो स्पाई है तो उसे रॉ के हाथ में देगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ये उसके इसमें, जैसे बाकी पुलिस फोर्सेज है हमारी लैंड पे, वैसी हमारी समुद्र में भी अपनी एक पुलिस फोर्स है जो कि नेवी के अंडर में आती है। मगर अगर बात किया जाए तो इसको ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, डायरेक्टली नेवी से नहीं मिलते। इट्स अ पार्ट ऑफ नेवी बट इट्स नॉट गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय नेवी एंटायरली। फिर हम बात करते हैं जैसे कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट होता है मैरीटाइम पॉलिसिंग, जैसे कॉपरेशन होता है नेबरिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट पायरेसी, स्मगलिंग एंड टेररिज्म। देखो पायरेसी मतलब नकली दवाएं, नकली नोट, ये सब चीज़ें आना, इसको हम बोलते हैं पायरेसी। टेररिज्म मतलब आप सब जानते हैं पूरी दुनिया टेररिज्म से परेशान है, और हम हिंदुस्तान 20-25 साल से इससे सबसे ज़्यादा परेशान है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, इलीगल मतलब जैसे गांजा हो गया, अफीम हो गया, हशीश हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से पहुँचाई जाती है। ये सब समुद्री रूट से बहुत ईजीली पहुँचाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैरीटाइम बाउंड्रीज होती है। तो आज एक पॉइंट आपको ये भी समझ गया कि CAPF में अगर मैं बात करता हूँ तो एक सेकेंडरी ब्रांच भी है CAPF की, जो इंडियन नेवी के अंडर आती है, मगर इंडियन नेवी पूरी तरह से उसको वो नहीं करती है, कमांड नहीं करती है। उसको कमांड ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं होम मिनिस्ट्री से। एग्जाम्पल लेते हैं, इतने सारे तूफान आते हैं गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मुझे बताइए NDRF के साथ सबसे ज़्यादा कौन मदद करता है? NDRF के साथ जो हेलीकॉप्टर्स मदद करते हैं वो कोस्ट गार्ड्स के होते हैं। बोट्स किसकी रहती है? कोस्ट गार्ड्स की रहती है। तो कोस्ट गार्ड जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ये भी एक पुलिस फोर्स है, दिस इज़ ऑल्सो पुलिस फोर्स। सो ये पानी की पुलिस फोर्स है। बाकी जितनी मैंने BSF, सशस्त्र सीमा बल, फिर आपको मैंने ITBP, फिर मैंने आपको असम राइफल्स के बारे में जो बताया, ये जो है ये लैंड पे काम करते हैं, ये लैंड फोर्सेज है। तो पानी में भी फोर्स चाहिए ना। मैं फिर से वही बात करूँगा, हर जगह पे आप डायरेक्टली आर्मी, डायरेक्टली एयरफोर्स, डायरेक्टली नेवी को नहीं ला सकते। भाई इनको ला दिए मतलब नेगोशिएशन की बात ही ख़त्म हो गई। ये आए मतलब वहाँ से एक गोली चलेगी तो यहाँ से ही सीधा एक मिसाइल ही गिराएंगे सामने वाले के ऊपर, ये इनका जवाब रहता है। तो मैंने सभी बच्चों को मैरीटाइम समझा दिया। तो बच्चों याद रखो, ये छोटा छोटा नॉलेज तुमको UPSC की एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। जब आप काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग में बैठते हो, तो आपको सामने वाले इंसान जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो वो लोग ना बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछते बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये कॉमन क्वेश्चंस ना बेटा हम लोग कभी ध्यान नहीं देते।
तो ये एक्सपेक्ट करते कि एक ऐसा इंटेलिजेंट बंदा आईएएस या आईपीएस बनना चाहिए जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो ये आपको डेवलप करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। और इससे रिलेटेड मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जैसे ईज़ हो गया, मैंने आपको मैरीटाइम सेक्शंस बताया, फिर मैं आपको देखता हूँ और कोई अच्छा टॉपिक दिमाग में जैसे बच्चों ने देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैरीटाइम का जो टॉपिक है ये मेरे एक स्टूडेंट युवराज ने मेरे से पूछा है। तो युवराज, ये तुम्हारे लिए भी है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि मैरीटाइम या कोस्ट लाइन की बाउंड्रीज़ क्या होती है। ठीक है, विद दिस थॉट आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड नाइट।